or my users of fiber of textilesresources.com really wish to listen from you or know from you is first you just let us know about yourself. I know that you have a lot of shows coming in every year, so introduce us with your shows, different shows which you have scheduled, perhaps 2 editions a year or maybe more than that, and then also let us know about what exactly your purpose of attaining BharatEx, how you find it so far, what are your expectations from the show. Just let us know on a this of notes. Thank you very much. I'm Julie Holt, the Global Exhibitions Director of ISC Group. We run a couple of editions of the Sourcing Expo each year, one in Melbourne in November, which has been an annual event for about 10 or 12 years now. Last year we introduced a second edition in Sydney, and in fact that's coming up again very soon in June 12th to 14th this year. My reason for coming to BharatEx is I know the export councils here extremely well. I've worked very closely with them, for most of them for about a decade now, so I'm very familiar with a lot of their challenges, their strengths. I know a lot of the exhibitors, obviously know the heads of the export councils very well. Exactly. So it made sense for me to come here and show my support for this phenomenal show, but also it's an extension of just our cooperation, because they are continuing to support our shows in Sydney and Melbourne. The Indian companies do very well in Australia. There's a lot that commends them to Australian buyers. They're very focused on transparency. They're authentic, easy to communicate with and do business with generally. So what I found really interesting at the inauguration today was Prime Minister Modi's real emphasis, if you like, on the private sector taking the lead in really driving new innovation across textile and new applications, trying to find new almost global niches in materials and kind of apparel that people mentioned kind of, I think, the gypsy kind of look, which I'm not sure if it's politically correct or not, but that sort of look on a global scale. There are lots of different niches that I think India could sort of play to and do very well. He also is very focused on cooperation across the value chain, but made clear many times the importance of employment across the country and women's empowerment. So all of those kind of themes really resonated with me, and I'm sure with the audience across the world effectively, because India is really I guess my main takeaway from this experience is how very serious India is now in terms of being ahead of everyone else in the world in textiles, and that there's no doubt that that's the case. I've only walked around a few of the, I think, 14 halls today, but every corner of every hall I'm so impressed. Exactly. So well done, India. Right. And we look forward to continuing our partnership with many of the export councils. Last question. So I'm sure you have a lot of your customers perhaps available here in the show. You have some prior meetings with them, or must be you'll be fixing some more meetings with them, attending or visiting their stores, their booths, inviting them to come again to exhibit in your show. What do you think that your visit in this show at BharatEx will help you further enhance your relations with them? You will be able to kind of attract more crowds from India to your show. Do you think that this visit at BharatEx, or BharatEx being in a larger show, will help you getting some more, I would say, benefits, some more advancement to your shows? What do you think about it? Well, I think the exhibitors here are very confident in the fact that in Australia we're very focused on continuing our strong association. The Economic and Trade Agreement has really helped that along. But it's a really great opportunity for me to speak to some of the exhibitors I know and some potential exhibitors and learn more about them. I mean, when I meet them when our shows are on, I'm usually a little bit,
busy and tired and crazy. So And even we are basically being benefited with this show that we end up meeting each other. We have been doing since long that's time right. but never met. Yeah. So this is a good chance for Yeah, me to exactly. kind of be a bit more relaxed and learn more about yourself and some of the other exhibitors. And obviously, some of the exhibitors here that have exhibited in our shows in Sydney and Melbourne can put on much larger displays here, so I can learn much more about what they offer because they're sort of in their home turf, if you like, and it's much easier for them to put on larger kind of exhibits, and I just learn so much more about them each time. And it's great when I walk around here and I hear Julie yelled out, and it's like, oh. The way And the way it's- I acknowledge you. Yeah, the way I exactly. basically Sometimes recognize you. it's embarrassing because I know the name and know the face and not the name. But clearly, after running these shows for quite a few years now, it's really kind of produced dividends in terms of my access to the market here and understanding about what India can provide. And the more knowledge I have also helps the buyers in Australia because I get a lot of inquiries from them, and if I can sort of respond meaningfully, even outside of the actual show event or the events, that's a benefit for everyone. Absolutely. Yeah. I think that's enough. That's really nice kind of meeting you. We've been exchanged a lot of emails. Perhaps I talked a little less, but then never had a chance to meet Yeah. each other. Well, it's But nice this is to the put first time, in fact, a happened. face to the name after many years of successfully, Yeah. I guess, advertising with you. And Right. obviously, my meeting with you now, it's very clear to me how much knowledge you have. So you'll be, Yeah. a valued partner. Perfect. Thank you Thank very you. much, Julie, for coming. Thank you. हम लोग यहाँ पे विज़िट किए हैं 2024 में, तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट है। आप देख रहे हैं, आई थिंक इंडिया का फर्स्ट ऐसा इतना बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। सो पहले इसके बारे में बताएं, फिर आप अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में प्लीज़। We are very optimistic about this event. We are looking with great optimism and hope that we will get an opportunity to connect with not only new customers but also our existing customers who will be visiting here. It's a great opportunity for branding. It's a great opportunity to showcase our capabilities, to showcase our abilities, and to showcase our product range. And we are really looking forward to this event. थैंक यू सो मच सर। सो थोड़ा सा आप जो आपका एक्सपीरियंस है अभी और क्या प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, कि मतलब ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया के लिए या टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है। और इससे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर, कि जो ये छोटे अपने तबके के लोग हैं, जो छोटे बिजनेस होल्डर्स हैं, उनको कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? नहीं, देखिए, जब भी इस तरह का इवेंट होता है जहाँ एक कंपनी एग्जिबिट करती है और हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो बेनिफिट दोनों तरफ से होता है। एग्जिबिटर्स को भी होता है और जो विजिटर्स होते हैं उनको भी होता है। हमें इसलिए होता है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो बढ़ता है तरह तरह न्यू कस्टमर्स के साथ, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हमें और हमारी प्रोडक्ट रेंज को और समझते हैं, और जो नए कस्टमर्स आते हैं उनके साथ तो, और जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि उनको एक सप्लायर मिलता है जिससे वो जुड़ सकते हैं, क्वालिटी सप्लायर मिलता है। हमारी मतलब हम अपने आप को एक वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, तो एक जगह आके उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं। सो द बेनिफिट इज़ म्यूचुअल, बोथ फॉर अस एंड बोथ फॉर द कस्टमर्स हु आर विजिटिंग अस, बिग और स्मॉल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बिग और स्मॉल। सो सर, एक चीज़ और, मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि जैसे स्टार्टअप्स हैं, अगर आप देखेंगे जो स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नया जो लड़का है या कोई ऐसा कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उसका कैसे फ्यूचर, वो उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, आप लोगों से कैसे जुड़ सकता है? देखिए, जो टेक्सटाइल है वो एक आदमी की बेसिक नीड है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान बोला जाता है, तो उसमें कपड़ा वो टेक्सटाइल ही है। तो कोई भी बिज़नेस जो एक बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है, उसमें तो अपॉर्चुनिटी की कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसलिए एज फार एज अपॉर्चुनिटी इज़ कंसर्न फॉर अ स्टार्टअप और फॉर एनी एस्टेब्लिश कॉरपोरेट, क्योंकि एक बेसिक नीड है ह्यूमन की, और तो इसकी डिमांड तो, और पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तो और फैशन बढ़ ही रहा है, तो इसकी डिमांड और इसकी यूटिलिटी तो एवरग्रीन है और यूनिवर्सल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है।
तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ले लें, स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ ले लें, डोमेस्टिक कंजम्पशन ले लें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ले लें, इसमें तो इट्स लिमिटलेस। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। सो हेलो सर, माय नेम इज़ दिवाकर त्रिपाठी और हमारा जो वेंचर है टेक्सटाइल रिसोर्सेज। सो सर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में, आपने कब शुरू किया और क्या आपका विज़न है कंपनी को लेके, और ये टेक्सटाइल जो इवेंट हो रहा है इंडिया में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, सो इससे क्या इससे कितना बेनिफिट होगा इंडिया को, या जो, और इसमें एक चीज़ क्वेश्चन हमारा रहता है सर कि अगर कोई न्यू जनरेशन जो है जो वो चाहता है कि अपना कुछ स्टार्टअप करें, सो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, कैसे उस पर हेल्प हो सकता है। एंड थर्ड थिंग जो मैम ने बताया कि आपके जो विजन्स हैं वो इनक्रेडिबल हैं, मैंने देखा अभी, तो उसके बारे में सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि प्लीज़ अपने बारे में बताएं, थोड़े कंपनी के बारे में बताएं प्लीज़। Basically, I'm an agriculture graduate and belong to a farming family. So farmers के साथ मेरा बहुत ही लगाव रहा है, and that is the reason why I came into agribusiness. But the idea behind whole business model was something different right from the beginning, where I should contribute something to the farming community directly or indirectly for their overall development. So that is the reason why I came into the sustainable cotton program, sustainable agriculture program. You can say around about climate smart agriculture. So what we are doing now, producing agri commodities with climate smart theory, giving them a good market network, and then trying to increase their overall income along with the livelihood, other livelihood options. So this is our goal, because today you can see in India the farmers are the backbone of agricultural economy, and they are neglected somewhere. There is a clear disconnect between the end consumer and the producer. So what we are doing is we are trying to create a chain between the consumer and the producer, so that we can convey the messages from the producer that what they are growing, and from the consumer what they are looking for. That was our idea behind developing this program. And for the upcoming generation, what I can say is that there is a clear shift towards traceability. Each and every consumer, each and every brand, each and every buyer buying houses, they have started focusing on traceability of the product, that who has produced this product, how it is produced, who all are agencies who are going to involve into verification of the process, verifying the system of traceability. That is very important, and I have seen in past 7 or 8 years the entire industry has started focusing on traceability of the product. So if the upcoming generation or new entrepreneurs who are interested to come into this type of business, they should really focus on creating more and more stronger traceable system, where they can say that this product is from this place, like with GPS location of the farmers, GPS location of the warehouses, GPS location of the processing units, and then create a map that okay, this product is going producing and processing and warehousing and then consuming by these consumers. So if you can create that type of model, is going to give a good support for the whole business model. थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बट एक क्वेश्चन मेरा अब आता है कि ये जो इवेंट इंडिया में हो रहा है, इससे इंडिया को कितना बेनिफिट मिलेगा। या चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, एक से एक बड़ी कंपनियाँ हैं, बट जो लोअर लेवल पे है, जैसे आप यू सेड दैट कि आप फार्मर फैमिली से आते हैं, तो वो जो एक, मैं दर्द नहीं बोलूँगा, बट वो जो सिचुएशंस हैं वो आप समझते हैं। मुझे बस ये जानना है कि इससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है या मिलेगा, ऐसा कुछ।
मुझे See, textile is having a very huge impact on the total GDP in India. Whether it is home textile or any segment in the textile industry. So this program is certainly going to give a very bigger platform where everyone is coming here. The producer, the intermediate agency, the accessories, the home furnishing, raw material producers, processors and consumers. So this program is going to, this BharatTex program is going to connect each and every component which was missing earlier. So I think this is a very good initiative by Government of India, and in last couple of decades I have seen first time this type of event which is going to really support the whole textile industry to give a clear direction and a vision for future, and especially in sustainable textile. थैंक यू सो मच सर. मैम से मेरा कुछ क्वेश्चन है. मैम, जो अपने कंपनी के बारे में आपने मुझे दिखाया, सो आप आज एक महिला सशक्तिकरण की बात होती है और उसी लेवल पे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं. तो मैं ये बस एक मेरा क्वेश्चन है कि आप सर के साथ ये कब जुड़ी और कब से, मीन्स आप लोगों ने एक विज़न देखा कि हमें ये चीज़ करना है. तो आप जो लड़कियां हैं, जो ऐसे मेनली ये होता है ना कि लड़कियों को हम सोचते हैं कि हाँ ये घर पे रहने के लिए चलो खाना बनाती हैं, बट वहाँ से भी कोई ऐसा है निकल रहा है जो घर को भी देख रहा है. और एक दिक्कत हमारे समाज का एक और रहा है कि जो नए जनरेशन की लड़कियां होती हैं उनको जो फॉरेन कल्चर है वो ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम खाना नहीं बना सकते, हम बच्चे नहीं पाल सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते. तो ये एक वो है. बट आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, एक जर्नी रही है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप फोकस करती हैं और कैसे बिज़नेस को ऐसे ग्रो करने में आप सर के साथ इन्वॉल्व हैं. मेरा देखा जाए तो सिंस लास्ट 22 ईयर्स आई एम डूइंग सोशल सेक्टर वर्क. सो मेरा ज़्यादातर अनुभव रूरल डेवलपमेंट में रहा है. अब जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अगर हम डेटा देखें तो वुमेन फार्मर जो है या एग्रीकल्चर में 65% वुमेन पार्टिसिपेशन है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में वो मिस हो रही है. सो थ्रू आउट अगर मैं बात करूँ, हम 2014 में अमिताभ सर से मिले थे. उसके बाद हमने कॉटन इन वुमेन करके एक कॉर्नर बनाया. सो वीमेन इन कॉटन कॉर्नर में हम लोग काफ़ी वीमेन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हाल ही हमने 500 फार्मर का एक जूथ बनाया है जो कॉटन प्रोडक्ट करते हैं, कॉटन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं एंड हालांकि डिसीजन लेते हैं कि मुझे किसको कॉटन बेचना है, मुझे किस भाव में बेचना है. ये करने के बाद एक बहुत ही बड़ा हमारा एक जिसको बोलते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट रहा, और आज वही बहनें दूसरी बहनों को सिखाती है कि यू आर वुमेन नॉट वर्कर, नॉट लेबर और वर्कर, यू आर द फार्म ओनर. सो ये जो उनमें एक डिसीजन मेकिंग का और एक खुद आइडेंटिटी बनाने का एक तजुर्बा आया है, वो उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे ले जाता है. इसी को जो आप यंग जनरेशन बोलते हो, तो हमने क्या देखा कि लाइक वेरी बैकवर्ड एरिया ऑफ ओडिशा, वुमेन आर स्टेइंग देयर गर्ल्स वांट, दे हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स बट दे डोंट वांट टू गो आउट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ hurdles. So in all villages we have started a one departmental store for women which called Meri Saheli. So it's my friend. So that is very small amount they start these stores, and with this income they are doing their graduations. So these type of activities we are doing to promote gender equality in the society. Like we are doing computer classes for women, English speaking for women. So young women will get more confidence and they will connect with the current market and current demand. I give you an example. 2 years back, we have started a 500 women farmers group. That was exclusively 100% women farmers. Okay. We produced cotton. We created a story. Okay. We created a story, and we sold that story to different brands. So you know one brand named Zara. Yeah. They came forward. Okay. That okay, Zara being a woman-oriented brand, so they came forward to buy the cotton from the women farmers. Okay. So the cotton is being produced by the cotton, and it is going to be consumed by the women. Okay. So there was a clear link. Yeah. So they came forward. They gave special premium, extra prices to the women farmers. Okay. And now after Zara, H&M came, Bestseller came. So these are the three big brands. They came forward to support the women farmers.
So my 500 group has increased now 1500 groups. Okay. So gradually we are trying to create, we are traders, Okay. but we are trading our cotton with some story. This is the difference between other traders and Amiya. सर रियली बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, बिकॉज कि क्या है कि हम सिर्फ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बट हम हमारी जो पीछे की जो एक कहते हैं ना कि नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, हम छोड़ते जा रहे हैं। शायद अगर आप फूड इंडस्ट्री में देखेंगे तो एक एलॉन मस्क ने एक बात बोली थी कि किसी ने उनसे बोला कि आप इतना पैसा कमाते हो, आप अगर पैसा बांट दो तो लोगों के बीच में गरीबी ख़त्म हो जाएगी। बट ही सेड दैट कि अरे नहीं, अगर मैं इन लोगों को ये दे दूं, बादाम दे दूं, काजू दे दूं, हरी सब्जियां दे दूं, तो भी लोग बर्गर खाने जाएंगे। तो ऐसा है, बट हमें सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा जो एक स्टेप है शायद चीज़ों को बदल सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आप दोनों लोगों से और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा करें और कर भी रहे हैं बेसिकली। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते, वाकुम त्रिपाठी, आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल रिसोर्सेज। सो सर, मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, आपका विज़न क्या है कंपनी को लेके, और एक ये जो इवेंट हो रहा है इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। सो जैसे प्राइम मिनिस्टर सर का एक विज़न है कि डिजिटल इंडिया, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आप अपने बारे में और कंपनी के बारे में प्लीज़ बताएं हमें। सो मेरा नाम समीर जोशीपुरा है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ट्राइडेंट ग्रुप को, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी है। वी आर अ वेरी लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ होम टेक्सटाइल्स टू वेरियस कंट्रीज, US being main. About this event, I think it's a first global platform for textiles business in India that has been created. Fantastic opportunity है, as I can see around लगभग सारे representatives यहाँ पे हैं। When I say sare, not only private organizations, also government representatives are in full flow here. So it's a wonderful opportunity to showcase India as a textile superpower. And जो एक हमारे honorable PM का एक जो vision है, which ये fulfill होते हुए देख रहा हूँ as we go year on year in this event. It's going to be a fantastic platform where global buyers are going to turn up here, looking forward to source from India, and which is what we want. So this is a fantastic opportunity that has got created. As far as Trident aligning to this opportunity is concerned, first of all, we are there into all 5 Fs as our honorable PM has put across. We source cotton from Indian farms and we supply garments to the stores across the globe, including India. We are focused on domestic market tremendously now since India is growing so well. 3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का भी फोकस है एंड हमारा भी फोकस है। वन इज़ कॉल्ड अतुल्य भारत। आर फर्स्ट जोन इफ़ वी सी इन आर बूथ is talking about the Indian designs, Indian craftsmanship. We have called it Atulya Bharat, so showcasing India's design capabilities to the world. We also have a zone called sustainability, which is also a great focus for the government of India and for the entire world. In fact, we are leaders in sustainability as far as home textiles are concerned. We have so many initiatives, including zero liquid discharge. We use almost 50%. We intend to use our 50% of renewable energy. We use biomass to produce our energy. So that's where we are leading from front. As far as digital Bharat is concerned, we use it tremendously inside the organization, but more importantly, if we go to the last zone of our booth, that actually showcases Digital Bharat, where entire booth is digital. So we are as much glued into digital initiatives that government is talking about, and we do implement day in day out here with our organization. So completely aligned in terms of what Bharat needs and what Trident wants to do here. सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी चीज़ों का आंसर दे दिया। मुझे ये तो एक क्वेश्चन था कि जैसे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रही है, सो कैसे आपकी कंपनी इसमें स्टार्टअप्स को भी हेल्प कर सकती है, और स्टार्टअप्स जो हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं,
उनको मीन्स इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए, कैसे चीज़ों को थोड़ा सा? So there are two things to it. One, if first let me talk about the startups where we engage with startups as our possible service providers or possible suppliers. So we do this tremendously. We have a very strong strategic sourcing team which goes out in the market, and irrespective of the size of the organization, if solution is good, and we have used it many times. In fact, we have been very proactive in encouraging entrepreneurs to take leadership into implementing some of what they think is the right thing for our organization. As far as textiles is concerned, I think this government schemes in terms of textile parks, now there is a PM Mitra, there is a PLI, so which is a fantastic boost by the government on top of what is already TUFs or the other export benefits which are being given. So this is an opportunity for entrepreneurs to come into this business. Government is encouraging. It is India's golden era, both as a domestic market as exporter also. So this is the right time if someone wants to really jump into it. सो थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा कि ये जो इवेंट हो रहा है इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, इससे इंडिया के ग्रोथ इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर सर का एक विज़न है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो मुझे उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ करिए कि जिससे आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा और जो नीचे जो तबके के लोग हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? सो दो चीज़ें, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एज फार एज टेक्सटाइल सेक्टर इज कंसर्न, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सेंट्रली अवेलेबल था ही नहीं कहीं पे इंडिया में. देयर यूज्ड टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पे यूजुअली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्राइडेंट यूज्ड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, बट दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइडेंट और सम ऑफ द लार्ज प्लेयर्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इतने सारे across the chain, from farm to fashion, everyone is present here under one roof. So I can already see a lot of international interest in coming, international buyers who are coming here. उनको ये देखना है. Of course it's a first year, so they are going to experiment, they're going to come with open mind. पर धीरे धीरे जैसे ये इवेंट चलती जाएगी साल दर साल ये इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, एंड दे वुड मेक इट अ डेस्टिनेशन की विथ एन एजेंडा कि मुझे ये करना है यहाँ पे. And this is definitely going to, so it is India showcase to the world that this is our capability. World already knows, but this is a central showcase that what India can do. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें दे दिया है. एक क्वेश्चन और है कि हमें कहीं से सुनने में आया कि आप किसी फैशन डिज़ाइनर के साथ कोलैब कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें. Yeah, so we have a zone which is designer's desk. We have got Shiva and Naresh जिसके साथ हम टाइप कर रहे हैं. So there is a zone. So I would encourage you to go in with your cameraman and click some of those pictures for the viewers. And I'm sure everyone would like it. Thank you so much sir. Thank you so much sir. हेलो, हम जैसे कि टेक्सटाइल इवेंट में हैं, सो हमारे साथ दो बड़े डिज़ाइनर हैं, शिवांग एंड नरेश, तो हम आज उनसे बात करेंगे. सो हेलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, और बहुत सारे जो न्यू कमर हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि आप लोग कैसे लोगों को बताते हैं, आपके डिज़ाइनिंग जो कपड़े हैं वो चीज़ें लोग देखते हैं, पहनना चाहते हैं. सो हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे इसी से रिलेटेड. सो फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये जो इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो इससे आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है और इससे हमारे इंडिया के जो ग्रोथ है या फैशन इंडस्ट्री है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? अभी हम प्रधानमंत्री जी को भी सुन के आए हैं, जो उनका विज़न है कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत हिस्सों में बटा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म सबको जोड़ने का तरीका है. उनका ये कहना था कि आप मेरे पास आ जाते हो अपनी मांगे लेके, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है और कोई भी एक साथ नहीं है. तो ये एक विज़न इज़ अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा सोचना
करना, और वो भी जैसे सुना टेक्सटाइल मिनिस्टर के बारे में, उन्होंने जब बोला कि ये इवेंट लिटरली 6 से 7 महीने में पूरा प्लान किया गया है, जिसको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। ये एक हिंदुस्तान में ही हो सकता है, जो हमारे पास हमारी जो क्षमता है चीज़ें एक साथ करने की, वो किसी में नहीं है। सो सर, इससे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फैशन इंडस्ट्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि ग्रो किया जाए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना जाए। सो इस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पे? स्ट्रीमलाइन जो हो रहा है इस इवेंट की वजह से, जो चीज़ हम सब जो सारे इंडस्ट्री, जो फाइबर से लेके फैशन तक के जो सारे लोग हैं, वो सब एकत्रित हुए पड़े हैं, एक जगह आए हुए पड़े हैं। उसकी वजह से जो स्ट्रीमलाइनिंग हुई है वो स्पीड बढ़ाएगी हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। जो भी अड़चने हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं हमें रोकने के लिए, वो इस एटलीस्ट मंच के ज़रिए हम लोग सब क्लियर कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे कौन कहाँ क्या कर रहा है। कभी कभार बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को ढूंढने में, आपको एक जगह जाना पड़ता है। यहाँ आज के दिन में 3,500 से ज़्यादा लोग एग्जिबिटर्स हैं, और कितने ही लाखों लोग यहाँ पे देखने आएंगे उनको और बिजनेस लेके आएंगे। दैट्स आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। राइट सर, कि जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही हैं। एक जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है, और एक विज़न भी है प्राइम मिनिस्टर सर का, कि एक बैकवर्ड एरिया अगर आप देखेंगे, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ के जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, और आप लोगों का एक करियर रहा है, जर्नी रही है, तो उनको कैसे मतलब स्टेप्स उठा सकते हैं, कैसे इस करियर में, इस फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ सर थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि आपकी खुद की कुछ जर्नी रही है। या आई मीन नरेश दिल्ली से है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। आई थिंक हम दोनों की जर्नी इतनी वेरीड रही है। मैं दिल्ली से हूँ, बट शिवन शहडोल मध्य प्रदेश में पला बड़ा मैं, तो बहुत ही छोटा शहर था। और आई थिंक हमारी कहानी एक बहुत बड़ा टेस्टामेंट है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप एक शहर से आते हैं या फिर आप एक छोटे से जगह शहडोल, जिसका नाम भी शायद किसी ने सुना नहीं होगा, और आप वहाँ से भी आ सकते हैं। हम दोनों की मुलाकात निफ्ट में हुई, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे मिलने के बाद हम दोनों ने अपनी फ़ैशन की जर्नी इकट्ठे शुरू करी, और उसी जर्नी को आज हम सक्सेस लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये किसी के लिए भी सोचना हिंदुस्तान में, भारत में, कि मैं एक बहुत छोटे से टाउन से हूँ, मैं बड़ा ड्रीम नहीं कर सकता, ये वो अब दिन बिल्कुल हिंदुस्तान के ख़त्म हो चुके हैं। आई थिंक आप सबसे पहले आपका बड़ा विजन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सपना देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर उस सपने को फॉलो करना, ये एक आपका बहुत बड़ा काम है। उसके लिए जो भी स्टेप्स आपको लगेंगे अपने करियर में आगे पहुंचने के लिए, वो ऑलरेडी हैं हमारे देश में। निफ्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आज निफ्ट के इतने सारे सेंटर्स हैं, सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के अलावा छोटे छोटे टाउन्स में भी अब निफ्ट खुल चुका है। तो इसलिए आपका जो ड्रीम है वो दूर नहीं है, आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू डू इट, बेसिकली सिर्फ सोचना है। सोचते सोचते आप कर्म भी करने लगते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। बिकॉज सर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने, कि जो इवेंट हो रहा है ना यहाँ पे, लिटरली ये हमारे जो नए कमर्स हैं, जो नए करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, कि पहले क्या होता था कि मैं खुद रियलाइज़ किया है कि पहले होता था कि IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट इस इवेंट से, और ये हर साल अगर होता है, तो जो नए जो लोग हैं, जो जॉब और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। सो ये चीज़ है। बट आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So first of all, good evening, and very congratulations on being part of this event, this huge event. So can you please introduce yourself, your company, what you do, and basically myself Chandrakant Das. So I belongs to Guwahati, and we have a corporation called Northeastern Development Finance Corporation.
where actually we work. But we are working for the artisans and weavers of the region, northeastern region. So we have a society called NSILF, which is set up by NEDP itself, Northeastern Development Finance Corporation, to enhance the economic, upliftment of the weavers and artisans of the region. So basic mission was that. So corporation is supporting the NSILF, this organization, to boost up marketing, boost up capacity building, and all sorts of requirement what actually required for the development of the region. So on that ground we are participating here. We are very much happy. We got very good buyers also here, and yes, this is Prime Minister's vision to boost up economy of the region. So we are working under that only. Okay. So can you just tell me your background, like how you you've got this thought of starting this or entering into this business? Can we have some? Yeah, as I told you, Northeastern Development Finance Corporation, basically a financial institute of the Northeast region. So it's under the Ministry of Donor, Government of India. So we basically looking after the economic upliftment. So economy in the village or rural sector, how we can develop? Through capacity building of the artisans and weavers, which is traditional business. Need not much money to start their ventures. And obviously we give them marketing support. NSILF is a brand established for all those weavers and artisans, and we sell their products, we buy back their products, we give training and buy back their products and then sell it to the market. So this, what happens actually, the money goes to the weavers and artisans directly. So they need not wait for the money to pay by someone. We instantly pay them and we sell their products to the market. This actually helps us to, in finance sector also, it helps us to give them financial support in terms of term loan or some other, grants from the CSR division also. Okay. So I just want to know that how this event, as you can see, this is a very huge event. So how this event is giving you a new exposure or providing you benefits or something like that. How do you think? What do you think about that? In textile sector, we were participating lots of exhibitions earlier, but it's really huge and it covers all, EPCs together, Export Promotion Councils, whatever maybe Handloom Export Promotion Council for Handicaps, Carpet Export Promotion, all these councils come together and it's a convergence. It's very nice because instead of creating differences, we should make a convergence so that we can help lots of entrepreneurs from the country to boost up our economy. We are very much happy to be part of this program. Okay. Yeah. So it's very, very, very nice to see you all here. One last question that I want to ask. We can see in terms of economics or in terms of economy, the northeastern regions are little backward, like we can see. So do you think this textile industry or this textile sector, whatever this is, so do you think how with what capacity this is uplifting the economy of northeastern regions? Yeah, very good question, because if you see the textile sector of the northeast India, it's basically handloom. It's not machine-made things. So we, small growers who actually, small weavers who can weave for 12, 13 meters in a month. So it falls under luxury segments. That's why we are working with the silk products. If you see two great silks like Muga and Eri silk, this is mostly found in northeast India. So this silk give us a room to work with the weavers, because I am very much hopeful that these silk products will go to abroad very much, and money will go to the northeast India, and hopefully I think my artisans, my weavers will get much money than that of their requirement. And I think also future course of time, with the help of the ministry, we can boost up their capacity and their enhancement in the economic development of the country. I think it's very hopeful to be a part of this event, and thank to Prime Minister ji, because he has actually taken this initiative to make all APCs together here. Thank you. Okay, thank you so much. सर हाय सर, मेरा नाम दिवाकर है और हम टेक्सटाइल रिसोर्सेज से आए हुए हैं. हमारा एक मीडिया फर्म है, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं. सो कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए
तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस तरह के जो प्लास्टिक है वेस्टेज जो हैं उसको आप यूज़ करके कुछ फैब्रिक बना रहे हैं। सो उसके बारे में और थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में मुझे बताएं। So basically, we are from JB Ecotech Surat. This is largest company at a single location with recycling volume of around 1 lakh ton per annum. 1 लाख टन बोले तो आप समझ लीजिए रोज़ का अराउंड 3-3.5 करोड़ बोतल रोज़ का पानी का बोतल हम लोग रिसाइकल करते हैं। और उसको रिसाइकल करके अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको ब्रीफ करूँ, ये वेस्ट बोतल जो होती है वो हमारे पास आती है। वेस्ट बोतल को हम लोग सेमी वॉश कंडीशन में बोतल बनी, उसके बाद उसका ये फ्लेक्स बना, ठीक है, ये वॉश करके हम लोग उसको ग्राइंडिंग करके फ्लेक्स बनाते हैं। फ्लेक्स बनने के बाद ये सारे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गया फाइबर, रुई। इससे हमारे कस्टमर ये वो सेम एज़ वर्जिन जो पॉलिस्टर रुई होती है, सेम एज़ वर्जिन पॉलिस्टर रुई वेस्ट बोतल से। एंड ये प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है। दिस इज़ केमिकल रिसाइकल ग्रैनुअल फ्रॉम वेस्ट पीईटी बोटल्स। उससे वापस यार्न बन सकता है, यार्न से वापस जीन्स एंड टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, पूरा टेक्सटाइल वैल्यू चेन में जाता है। तो हम यहाँ तक हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे आप देख सकते हैं पैड शीट, पैड स्ट्रैप, फाइबर, वो ग्रैनुअल्स, एंड उसके अलावा एक हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हम लोग ग्रैनुअल मैकेनिकल रिसाइकल ग्रैनुअल बनाएंगे जिससे वापस बोतल बनेगी। मतलब बोतल टू बोतल कंसेप्ट हो गया कि वेस्ट बोतल से नई बोतल बनेगी। तो ये सब मिला के हम लोग अभी ऑन एंड अराउंड 1 लाख टन पर एनम हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये 1 लाख टन का 1.5 लाख टन के आसपास ये कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मतलब तो सर एक क्वेश्चन है मेरा कि मीन्स जैसे आप ये फैब्रिक बना रहे हैं, जीन्स बनाते हैं, तो ये कितना कंफर्टेबल होगा लोगों के लिए? थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, जीन्स हम नहीं बना रहे, हम फाइबर बना रहे हैं, ग्रैनुअल बना रहे हैं। फिर हमारे कस्टमर यार्न बनाते हैं, यार्न वालों के कस्टमर फैब्रिक बनाते हैं। और नोइंगली अननोइंगली 50% इंडिया में जो भी कपड़े हैं वो रिसाइकल्ड है। कोई मतलब आपको पहनने पे भी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे मेरा ये ट्राउज़र सूट रिसाइकल्ड है, आपके हो सकता है कि आपके ट्राउज़र भी रिसाइकल्ड हो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है उनका मदर केमिकल और बोतल का मदर केमिकल एक होता है। तो हम लोग पॉलिस्टर कपड़े को वॉश करके जब मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के बाद यार्न बनने के बाद कोई फ़र्क नहीं रहता है। और आपको पहनने पे फील करने पे पता ही नहीं पड़ेगा कि रिसाइकल्ड है, वर्जिन है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। सो सर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट कब आया आपके दिमाग में, आपकी कंपनी के कितने दिन हो गए आपको ये चीज़ें करते हुए? हमारा प्लांट हमने चालू किया था 2015 में विथ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 30,000 मेट्रिक टन पर एनम। ओवर द टाइम ऑफ 8 to 9 ईयर हम लोग ने पहले फाइबर चालू किया था, फाइबर के बाद शीट बनाई, शीट के बाद स्ट्रैप बनाया, स्ट्रैप के बाद एक केमिकल रिसाइकल ग्रैनुअल बनाया। अभी और एक और एक्सपांशन है। आज की तारीख में इंडिया में सब एट अ सिंगल लोकेशन सबसे लार्जेस्ट प्लांट हमारा है फॉर इन द टर्म्स ऑफ पैड रिसाइकलिंग। और आने वाले टाइम में और भी एक्सपांशन प्लान है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना यूनिक चीज़ सोचा और इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हमारे अर्थ को कितना ज़्यादा हार्म कर रही हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है, हमारे लिए गिफ्ट ही है। दूसरा चीज़ सर, ये टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है, आई थिंक इंडिया में पहली बार हुआ है इतना बड़ा टेक्सटाइल इवेंट, ठीक है। सो आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या लगता है कि इससे मतलब कितना फ़ायदा होगा कंट्री को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? बेसिकली इसको अपने देखें तो बाहर कई जगह पे सारी टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक ही जगह, जैसे चाइना ले लो तो कैंटोन फेयर होता है, यूरोप में ले लो तो सब जगह क्या है कि एक ही अंडर द वन रूफ सारी वैल्यू चेन आती है। इंडिया में ये पहला अटैम्प्ट हुआ है कि जिसमें अंडर द वन रूफ अपने सारी वैल्यू चेन को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। नए ट्रेड, नए कनेक्शन, नए जॉइंट वेंचर्स, नई चीज़ें, सारी चीज़ें होगी। ये पहला एडिशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन पहले एडिशन के लिए ज़्यादा नहीं है, बट एक सक्सेसफुल इवेंट हो जाए तो ओवर द ईयर ये एक बहुत मतलब एशिया पैसिफिक ही नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभर सकता है। जैसे प्लास्ट इंडिया हुआ तो प्लास्ट इंडिया आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो एज इट इज़ ये भी धीरे धीरे एक सिग्निफिकेंट लेवल पे जा सकता है ये एग्जीबिशन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे मान लीजिए कि स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो अगर कोई जुड़ना चाहे आप लोगों से या कोई स्टार्टअप करना चाहे या आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके कैसे आगे बढ़ सकता है, कोई नया कमर अगर कोई हो? टेक्नोलॉजी बेसिकली ये रादर देन टेक्नोलॉजी रेडी, कुछ जैसे हमारा ये चिप्स है तो ये हमने सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजी की है। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमारा जो आज का कॉस्ट है वो अराउंड 200 CR कॉस्ट, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन हाउस इन बिल्ड टेक्नोलॉजी है।
बाकी फाइबर की टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल है, बट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। एंड स्टार्टअप के लिए नए लोगों को करने के लिए एज ऑन टुडे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपांशंस प्लान है, अराउंड आप समझिए अराउंड 9 लाख टन के आसपास नए एक्सपांशन नेक्स्ट आने वाले 1-1.5 साल में आ रहे हैं। तो उसके बाद ये कैसे इकोसिस्टम और ग्रो करता है, कोई अगर नया चीज़ करना चाह रहा है तो टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग पे फोकस होना चाहिए, कि जैसे अपने कपड़े पहने हुए हैं तो पहने हुए कपड़े को वापस रिसाइकिल करके नया कपड़ा कैसा बनाया जाएगा। तो वो एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है और इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हेल्पफुल टॉपिक हो सकता है। थैंक यू को उसकी तरफ फोकस जरूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा, मतलब यूनिक एकदम प्रोडक्ट है आपका सेटअप बॉस। हाँ, ये हमारा मुंबई में यार्न ने फेयर एग्जीबिशन जो हुआ था मुंबई में 22 तारीख से 22 to 24 था, तो उसमें भी सेम सेटअप था। हम लोग लास्ट 3 साल से ये यूनिक कॉन्सेप्ट और ऐसे ही करते आ रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। Evening, sir, and very congratulations on being part of this mega event, as this is a very huge platform, as we can see. So just can you give us your brief introduction, like how you have started, what you do in this business? Actually, we are into weaving from last 35 years, based in Ludhiana, with the name of HK Texware Private Limited. It was started by my father, and we started with Khaddis. Now it is an automatic plant right now, and now we have also added garmenting into it. So we are actually we are adding from fiber to garment. We can give everything into. We are into summer fabrics also and winter collections also. We have with our brand name HK. So this is, I can see it is from fiber to the ready-made section also. You are dealing with every single part of it. So basically, what challenges comes when in terms of like dealing with this separate sectors or separate segments, like dealing with fibers, dealing with like ready-made section. So what are the challenges that come across? Actually, of course there are challenges, and what's the work without challenge? If there is no challenge, there is no fun, I think. But it is also a fun part also, because we have we can create things from the fabric. If we are only into garmenting, we cannot create things according to our taste or everything. With this model, we have an advantage that we can create the design according to fabric, according to the market demand, and we can be exclusive in the market. The designs we are making, we have our own design team. The designs we are making are not available in the market. That gives us an edge to work for that. But of course, there are challenges. We have different teams. Each team is working on there with synchronization with everyone. They are working for it. So I had a conversation with multiple companies regarding the same, and one thing came, like we can see it's a huge platform. Like there are many bigger competitors, like larger companies. There are very small, or you can say multiple startups have involved in or participated in this event. So what do you think they are going to transform, or they are going to get from this event? What are the you can say the extras they are going to get from it? Actually, what I think about these events, you get to know different people, and so I have met some consultants also, some software people also, which can help me in manufacturing managing my manufacturing. Of course, we are here for customers also, and it is giving us opening a large sphere for us, for new markets, new people from all over India, which can come here. It's a huge show. Everyone is coming, so it's a huge opportunity for all of us, I think. And one last question that I want to ask: what do you think this this event is going to transform into the textile industry? What this event is going to give to this whole large industry? I think if it is continued in a better way, and it has started. If it is continued in this way, I think it can we can reap many benefits from it. It can get the textile market into another thing, like the Modi ji said today, that we have to be global. 5 Fs we have to go. So if we have to do this, then we need a platform like this. It's very much needed at this time.
So like we are this textile industry is like you can say contributing to the economy. It's on the second position, like we can say after agriculture. So we hope Make in India is making the economy or our country better, or representing or taking it to the global level, right? So what are your views on this, like Make in India, how well it is going or something? Yeah, sure. I think manufacturing is the way to go. If we have a large population of around 140 crores we are, and we can develop or we can make opportunities, job opportunities with the sector like textile only, which is labor intensive. For me, I know if a software company with my turnover would be working with 40 or 50 people, but in textile I need around 300 to 400 people for this. So it's the need of the hour for the country like us which has 140 crore people. That's the thing. Thank you. It was कि क्या फ़र्क पड़ेगा। आज मोदी जी ने सुबह पता क्या बोला, कहते यहाँ पे तो बनाने वाले बहुत है, पहनने वाले भी बहुत है, यहाँ नहीं भी बनाओगे फिर भी चलेगा। अभी 2 एक्सपोर्टर आए थे तो कहते यार आपका जो फैब्रिक है ना ये 44 बिट तक जाता है, मेरे को बड़ा साइज़ मिलेगा। मैं क्या मिलेगा, कहने कितना, मैं क्या आप जो कहोगे वो मिलेगा। वो कार्ड दे, कहते ऐसे करो मेल करो, आप प्राइसिंग बताओ, मैं कल फिर आऊँगा। तो जो सुबह मोदी जी ने बोला हम तो उस पर काम करने पर लग गए हैं जी। जो बाहर से आ रहा है ना उसको जो वो चाहता है उसको दो। उन्होंने भी यही बोला आप ये पता करो कि वहाँ की क्या नीड है। यहाँ पे तो कह रहे पहन रहे हैं, नहीं थोड़ा बनाओगे ना फिर भी पहनेंगे इंडियन। बाहर का पहले देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो वही 2 ग्राहक निपटाए हैं हमने, वही देख रहे हैं कि अब आप जो बोलोगे हम बना के देंगे। हम तो बनाने वाले आदमी हैं, मशीनें लगी हैं, बना देंगे। ये भरोसा है कि इस साल तो थोड़ा कम, लेकिन अगले साल जब इवेंट होगा या नेक्स्ट टाइम जब इवेंट होगा तो बहुत ज़्यादा ग्लोबली लोग इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ से। क्या अगले साल तो ये लग रहा है कि 4 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी यहाँ की। इस बारी तो शायद ऑर्गेनाइजर्स ने फ़ोन करके बोला था सबको कि यार आप स्टॉल ले लो। अगली बारी हम 4 महीने पहले कहेंगे जगह हमारी रख लेना। तो वो अगले साल वो होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ना एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, नाम क्या लेना, मगर कभी भी ना कैसे वहाँ पे एक्सपोर्टर्स या डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स नहीं आए हैं। जो आते भी थे ना यहाँ के लोकल बाइंग हाउस आते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है वो भी आ रहा है। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि उनको क्या चाहिए वो हमें लगता है पता, तो उनको जो चाहिए लगेगा पता तो वो बना के देंगे, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी सर। और नेक्स्ट ईयर जो लग रहा है ना ये इवेंट बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल आज ये पहला दिन है, लेकिन एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। हर जगह वर्ल्ड वाइड हमें इस इवेंट की बात सुनाई दे रही है, लोग बातें कर रहे हैं। सर आप खुद देख लो, हमने 5:15 बजे ऑर्डर कर रहे हैं, हमारा जोमेटो का ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी पहला दिन है, कल तो लंच हो नहीं सकता, तो पक्का है। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हैवी करके आएंगे। बिल्कुल। आज का जो ये हम देख पा रहे हैं, जो आज का मैसेज गया है, कल तो हाउस फुल होने वाला, पैक्ड होने वाला है। बिल्कुल पूरा पैक्ड होने वाला। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो गुड इवनिंग आप दोनों को। सबसे पहले तो अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करिए, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करिए। क्या है आपकी कंपनी, क्या करती है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम प्रतीक जैन है। मेरी कंपनी का नाम SB हाउस है, जहाँ पे हम RFD फैब्रिक्स, मिल प्रिंट फैब्रिक्स और डिजिटल फैब्रिक्स, ये टाइप के फैब्रिक्स बनाते हैं। खुद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स दोनों करते हैं, और उसी के लिए उसमें ही हम एम्ब्रॉयडरी, क्रोशेट, शिफली ये सब भी डेवलप करते हैं, जिसके लिए अपने कुर्ती, साड़ीज़, गाउन्स, इन सब में भी यूज़ आते हैं ये सब फैब्रिक। और रिसेंटली हम मेंस एथनिक वेयर में भी जा रहे हैं, ऐसा है। तो आप कुछ अपना एक बैकग्राउंड बताइए, जैसे कैसे आपने सोचा इस फील्ड में आने का, कैसे आपने सोचा कि यहाँ हम इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मैंने कॉमर्स किया हुआ है, तो उसमें हम सूरत से है, तो टेक्सटाइल बैकग्राउंड पहले से है ही है। तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता रहा, पापा के साथ बैठे, तो फिर उसके बाद उसके अलग से कुछ देखा कि भाई ये चीज़ गारमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं गारमेंट सेक्शन में गया, स्टडी किया पूरा प्रॉपरली। उसके बाद मैं फैब्रिक बनाना, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया और फिर सप्लाई चालू किया है। तो जैसे ये इवेंट भाई
पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने बड़े इवेंट के आप पार्ट हैं। और जैसे बहुत बड़ा इवेंट है, हम देख सकते हैं आई थिंक 3000 प्लस कंपनीज़ यहाँ टेक्सटाइल कंपनीज़ आई हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो सारे एक साथ आके एकजुट होकर एक बॉन्ड शेयर कर सके, एक नया रिलेशन बना सके। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे आपको लगता है कि ये इवेंट आपको कितना बेनिफिट पहुँचाता है, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस इवेंट से? देख, इवेंट तो काफ़ी बड़ा है। अब ये इवेंट हमारे लिए कैसे बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे कि भाई हम इजीली किसी से भी बायर से कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं। हमको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह इतने सारे बायर्स मिल जा रहे हैं हमको, तो वो हमारे लिए बेस्ट बेनिफिट्स है अभी तो ऐसा। तो जैसे आपने कहा, आप फैमिली बैकग्राउंड आपका बिजनेस से है, आपके फादर टेक्सटाइल से रह चुके हैं, तो क्या आपने कुछ नया इनोवेट किया है? जैसे आपने जो आप फादर से आपने लिया, तो उससे आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया है? क्या आपने नया इनोवेशन के साथ आप आए हैं? जैसे आपने बोला आपने स्टडीज़ की हैं उस चीज़ से, तो आपने क्या नया करने की कोशिश की है और क्या नया बनाने की कोशिश की है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे पापा थे साड़ी के बिज़नेस में, तो हम साड़ी से हट के गारमेंट सेक्शन में आए। गारमेंट में क्या क्या नए डिज़ाइंस डेवलप हो रहे हैं, उस पर वर्क करके क्या क्या नया करा जा सकता है, और डिपेंड करता है खाली अलग अलग डिज़ाइन क्या क्या चल रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर उस हिसाब से डेवलपमेंट करके हम आगे सप्लाई कर रहे हैं। वैसा इनोवेशंस में तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। मेंस वेयर का भी है, वुमेंस वेयर का भी है, किड्स वेयर का भी है, तो अलग अलग डिपेंड उस हिसाब से कर रहे हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा सेक्शन जो हम कह सकते हैं, जो आपका सबसे बड़ा सेलिंग सेक्शन या जो कह सकते हैं, वो कौन सा है, और ऐसा क्यों है कि वो आज आपके साथ सबसे मतलब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, या सबसे बड़ा आपके साथ ये बन के खड़ा हो? हमारा मेन जो सेक्शन है वो फैब्रिक का है, लम्प टू लम्प का। वो इसलिए बेनिफिट है क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ फैब्रिक हम बनाते हैं, जो एक ही फैब्रिक मेंस वेयर में भी यूज़ आ जाता है, वुमेंस वेयर में भी यूज़ आ जाता है, किड्स वेयर में भी यूज़ आ जाता है, तो वो उस हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करता है ऐसा। जैसे हम देख सकते हैं आपका जो ये हमारे जो सेगमेंट्स लगे हुए हैं, हम देख सकते हैं कि मोस्टली ये रेडीमेड सेक्शन आपने पकड़ा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपने रेडीमेड को चुना? रेडीमेड मैं बाय प्रोफेशन में एक फैशन डिज़ाइनर हूं, और एसवी डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट करते हुए आज मैं ये जगह पे मुझे मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूं। और ये आज की ये जो मेरी पार्टिसिपेशन है, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गारी जिसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो एक चीज़ ये अपना टेक्सटाइल है। और मैं अब खुद के लिए नहीं, ये इवेंट मुझे कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं राष्ट्र के लिए कुछ अपना थोड़ा योगदान दे रहा हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए मैं अपना कुछ योगदान दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ ना ही खुद के प्रॉफिट की मैटर्स रहती है, लेकिन दूसरे का भला हो, अपने से किसी का अच्छा हो, ये कॉन्सेप्ट को मैं आज महसूस कर रहा हूँ। और ये अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5F विज़न है, उनसे मैं रियली इंस्पायर होके आज मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good evening, sir. Hi, good evening. And very congratulations on being part of this huge event. First of all, I'd like a brief introduction from you, what you do, what your company do. Well, Ganga Fashions is a process house. We are into dyeing, printing, digital printing, rotary printing, and sublimation, which is a paper transfer technology, and that's what we do. Textile prints and fabrics, and ladies unstitched suits. That's what Ganga Fashion, the brand, is about. Okay. Talking about this organization or this company, so I just want to know how this all began. Like, what is the background of this company? How this build up? Well, the promoters, they started. Mr. Sanjay Gangwani, it was his vision. He started this company way back in 1994. It started off as an export company, but then it got into the backward integration to prepare the fabrics and
do the prints, and so now we have our own brands and we're doing our own prints. We have a design house and we're creative heads, and that's how we have gone into the market, the local market and the export. Okay, that's very interesting. One thing I want to ask, like this is a very huge event, as you can see, like 3,000 plus companies are here. This is a very big platform that government has given. So how do you think this is going to improve the textile industry? How do you think this is going to build up the textile industry? Well, it's a very good initiative from the government, and I believe that it's a global platform. It's kind of one of the biggest textile events I have ever witnessed. Been to a lot of them abroad also. This is one of the largest textile events I have come across, and this will make a very big business impact on the global market, and hopefully just keep our fingers crossed and Make in India will happen. Definitely, definitely. So Make in India is in, you can say, good progress. So I would like to ask one more thing. Like when we talk about the economy of India, so we are like developing country. Okay. So talking about the textile industry, which is very huge in sense of generating profits and all. So how do you think this textile industry is going to grow, or how far it is going to go in future 1 or 2 decades? Well, as far as I know, textile is generating the second largest employment after agriculture in India. It's second largest. Maybe that's only more it is because it's more unorganized than its organized sector. But yes, it will help in going more organized way. So if this kind of events start taking place, there will be more awareness in the market, and people will come up with better solutions and better what do you call it? The thoughts will basically when they have the inputs and from the world market, and it's given us it's a very good platform for launching if somebody is new also, and this kind of event and this event of this magnitude it's really amazing. Credit should be given to the broader Tex 2024 and the vision of our PM. So since it is it's only been 1 day of this event, so what experience have you got, or till now, how broad you can think of that? Well, it's too early to say anything. We are into our just first day, half the first day, and it's too early to give any comments on that. But yes, we are seeing a lot of international buyers and visitors walking around and coming in, looking at the fabrics, feeling, which I believe they may or may not have, that India has got this kind of potential to work with the fabrics and to give this kind of textile products which India is offering today. Thank you so much, sir. Thank you. And I wish you all the best. Thank you so Thank much. you. Thank you very much. So good evening, first of all. और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस बहुत बड़ी, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, जहाँ एटलीस्ट आई थिंक 3,000 प्लस कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज यहाँ मौजूद है। तो उसमें एज ए मेंबर पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने जैसे इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कंपनी कैसे बढ़ा, और क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या थोड़ा सा? थैंक यू जी। तो जैसे आपने कहा कि भारत टेक्स एक ग्लोबल लेवल का इवेंट है, और ऋषभ वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहा 4 महीने पहले, जब हमें पता चला कि मोदी जी की मुहिम से ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है और इसके ऊपर टेक्सटाइल को पूरी दुनिया में ले जाने की जो बात हो रही है। आज इनाग्रेशन में भी जो मोदी जी ने कहा कि जो 5F की हम बात कर रहे हैं, तो फार्म से लेके फैशन तक और फॉरेन तक, तो हमारी कंपनी ऋषभ वर्ल्ड, जो कि आज 93 साल पुरानी कंपनी है, और 1929 से लेके आज 2024 में करीब 20 देशों में ये पहुंच चुकी है। भारत में ऑलरेडी ये मेंसवेयर सेगमेंट में काफ़ी बहुचर्चित कंपनी है, और हमने सोचा कि ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री की सोच है, उस सोच की मुहिम के साथ साथ में हम भी जुड़ें, और भारत टेक्स में जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि पूरी देश दुनिया से
लोग आने वाले हैं, बायर्स आ रहे हैं और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हम जैसे सप्लायर्स को मिलने वाली हैं। तो ये प्लेटफॉर्म तो मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का ये भारत मंडपम और उसके अंदर इस तरीके की मुहिम और इतने कम समय में इतने सारे एग्जिबिटर्स का आना और जो एक्साइटमेंट हम सुबह से देख रहे हैं, जितने सारे लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आगे सालों में, इस साल तो हम सब भी शायद समझ रहे हैं और सिर्फ मोदी जी के भरोसे पे शायद बहुत लोग यहाँ पर आए होंगे और कुछ तो कि पहली बार कुछ हुआ जा रहा है और जो भी उन्होंने किया है काफ़ी बड़े पैमाने पे किया है, उन चीज़ों को सक्सेस मिली है। तो लगता है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इस देश में। तो मुझे लगता है कि आगे के सालों में भी, इस साल में अगर कम लोग भी आए होंगे बाहर से, आगे के सालों में भी काफ़ी विदेशी बायर्स यहाँ पर होंगे। और जिस तरीके से हम देखते हैं मिलानो यूनिका होता है, प्रीमियर विजन होता है पेरिस में, शंघाई फेयर होता है, न्यूयॉर्क फेयर होता है, तो शायद ये दिल्ली फेयर भी एक भारत टेक्स एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा, बहुत जल्दी ही बनेगा। तो हमारी बहुत आशाएं हैं। मैं अपने ब्रांड्स के बारे में, कंपनी के बारे में बताऊं तो 1929 से अजमेर से शुरू हुई ये कंपनी 2024 में इंडिया में एक जानी मानी कंपनी है जिसमें कई ब्रांड्स हमारे मेंसवेयर के हैं। उसमें बताऊं तो प्रीमियम ब्रांड है हमारा, वो है डॉन एंड जूलियो, जो कि मदर ब्रांड है। पूरे देश में करीब 4,500 से ज़्यादा दुकानों में इसकी अवेलेबिलिटी है। और इसके अंदर वेस्टर्न वेयर के अलावा जो देश में जो इनक्रेडिबल इंडिया, जो एक भारतीयता की जो गौरव की बात करते हैं हम, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन हमने ये बनाया हुआ है, जो कि गुजरात के ट्रेडिशनल अटायर के ऊपर है, टाई एंड डाई और उसके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी, उसके ऊपर से मिरर वर्क। तो ये शीशा कलेक्शन है जो कि इंडिया में शादियों में बहुत प्रचलित है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा फिर तो जहाँ एक तरफ हम देश की बात करें तो विदेशों के लिए हमारे पास में प्रॉपर वुल रिच फैब्रिक में मर्सरी का कलेक्शन है, जिसके अंदर सूट्स, ट्राउज़र्स और शर्ट की रेंज है। और ये भी इंडिया के सारे बड़े, अगर टेलर्स की बात करें और इंडिया में जो फैब्रिक स्टोर्स की बात करें, सब स्टोर्स में बहुत चाव से ये बेचा जाता है और कस्टमर की काफ़ी अच्छी पसंद है। इसके अलावा आपको दिखाऊँ तो ये एक जो हम कहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन शादी का कलेक्शन, तो बहुत फेमस डिज़ाइनर है नीलेश बहुत मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा एक आप कह सकते हैं एक पीस है। देश विदेश में इसको बहुत चाहा जा रहा है और हमारे एसोसिएशन है, कोलैबोरेशन हुआ है नीलेश मितेश के साथ, जो कि बॉम्बे के एक बहुत फेमस ब्रांड है, कोरा के नाम से उनका डिजाइनिंग सेटअप चलता है। हाँ जी। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में ये पूरा का पूरा हमने कलेक्शन बनाया है, जो कि शादियों के कस्टमर के लिए बहुत ही बढ़िया फाइन पीस जी, वेरी फाइन पीस। इसके अलावा ग्लोबल कस्टमर्स की बात करें तो हमारे पास एक पूरा डिवीज़न है जो कि टोटल अपैरल सॉल्यूशन के नाम से है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो देश के ब्रांड हैं या विदेश के ब्रांड हैं, उनको कंप्लीट जो मोदी जी ने आज कहा कि फार्म से लेके फॉरेन तक, तो ये एक उसका एक अनूठा एग्जाम्पल है, जहाँ पर कि हम लोग एक फ़ैशन को देश के और विदेश की कंपनियों के पास में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बना के हम डिलीवर करते हैं एज ए FOB पैकेज। फिर जब हम फिट इंडिया की बात करें, एक दूसरी मुहिम देश में चल रही है कि एक हेल्दी नेशन होना चाहिए, फिट इंडिया होना चाहिए। वहाँ पर हमारी ये अगली मुहिम है, जो कि इंडिया का सॉफ्टेस्ट एक्टिव वेयर प्रोडक्ट है। और ये है प्योरली जिम जाने के लिए, भाग दौड़ के लिए, कसरत के लिए। तो उसके लिए एक स्पेशल कलेक्शन है जो कि देश में हमने इसी साल लॉन्च किया है और काफ़ी यंगस्टर्स में काफ़ी पसंद किया जा रहा है और कई स्टोरों में इसका प्लेसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल वेयर से लेके एक्टिव वेयर से लेके जो फॉर्मल वेयर है, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है देश विदेश के कस्टमर्स के लिए हमारी कंपनी मुहिम कराती है। तो पूरी आशा है कि भारत टेक्स के द्वारा हमें काफ़ी यहाँ कस्टमर्स मिलेंगे और सरकार की मुहिम, मोदी जी की मुहिम से हम और भी कई देशों में
यहाँ से पहुँचेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी फाइन पीसेस यहाँ रखे हुए हैं आपके कपड़ों के, और जैसा आपने कहा कि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेक्टर है जहाँ जो इकोनॉमी हमारी बिल्ड करती है नेशन की, तो मैं यही एज्यूम कर पा रहा हूँ कि जो भारत टेक्स ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, उससे आपने बोला, बहुत सही बोला आपने, कि वर्ल्ड लेवल पे आज अगर हमारे पास कम भी हैं तो आगे चल के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे जो ये रिज़ल्ट देखेंगे। और आज पहला ही दिन है और मैं देख पा रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी जगहों पे मैं घूमा, मैंने ये देखा कि लोग जो है ना वो एक दूसरे से इतना कोलैब कर रहे हैं, इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं कि मतलब एक लेवल जो होता है ना उसके पार जाके वो कोलैब कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंस है और इतना बढ़िया जो सेटअप तैयार किया हुआ है, ये जैसे सुन रहे थे कि आज गोयल जी बता रहे हैं कि 2000 पिछले साल में ये G20 समिट के टाइम पे ये भारत मंडपम बना हुआ है। एग्जैक्टली 26 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई थी और आज 26 फरवरी को इतना बड़ा यहाँ पर इवेंट हो रहा है। तो ये अपने कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा यूज़, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ग्लोबल लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, बहुत सही इस्तेमाल किया जा रहा है और भविष्य में मुझे लगता है ये और भी रिफाइन होगा और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, काफ़ी बायर्स आएंगे और इसका फ़ायदा तो हमारी इंडस्ट्री को होगा ही होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भारत टेक्स और डेफिनेटली मोदी जी और गवर्नमेंट तो है ही है जो कि जिनको ध्यान देना है इस इंडस्ट्री के बारे में और भारत से इस इंडस्ट्री को जितना आगे ले जा सकें पूरे देश दुनिया में हम बहुत बड़े ग्लोबल सप्लायर बन के आगे निकलें, बस यही आशा है हमारी इस इवेंट से। तो जैसे एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज हमारा इवेंट आज स्टार्ट हुआ है, आज मोदी जी भी आए थे, एक नए एक जोश के साथ आप कह सकते हैं एक शुरुआत हुई है। तो एक छोटी सी आपसे, आप एक्सपर्ट हैं, आप इस फील्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत जगहों पे घूमे हैं, तो आप ये बताइए कि आज का एक्सपीरियंस, आप बताइए कि आज का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा इस पूरे दिन का। आज 4:30 या 5 बज रहे हैं, तो आज इस पूरे दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा और आपको क्या लगता है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस ग्लोबली, मतलब इस पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैसे आप कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन ला रही है या कैसे एक रिवॉल्यूशन आगे लाएगी? देखिए देश में ऐसा नहीं है, इस तरीके की एग्जीबिशन तो होती रही हैं, मुंबई दिल्ली में हमेशा होती रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होती रही हैं और इस तरीके से ये जो एक सिंडिकेट सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का बन के ये जो एक भव्य आयोजन हुआ, ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ था। बाकी छोटे तौर पे तो ये सारे इवेंट होते रहे, देश में होते रहे, विदेश में हम लोग जब ट्रैवल करते रहे, मिलानो इनका जाते रहे, प्रीमियर विजन जाते रहे, तो वहाँ हमने देखा और जब हम जाते थे तो ये सोचते थे कभी हमारा देश टेक्सटाइल में इतना आगे होते हुए भी क्यों इस तरीके का हमारे पास में सेटअप नहीं है, क्यों इस तरीके का हमारे पास में इवेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कि हमें अपने स्टॉल दूसरे देशों में जाके लगाने पड़ते हैं वहाँ के कस्टमर्स को रिझाने के लिए, उनके कस्टमर्स के कनेक्ट में आने के लिए। तो आज का प्लेटफॉर्म शायद उन सब चीज़ों को जो हमारी सोच थी अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े शायद कुछ बंधन समझ सकते हैं कि हम लोग को अभी तक थे कि यहाँ से जाके अलग अलग देशों में जाएं और वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, तो वो अगर वो कस्टमर चल के यहाँ पर आ रहा है, एक तो पहली बात तो ये है कि भारत में जो टूरिज़्म बढ़ेगा, फॉरेनर्स आएंगे, वो तो एक सेकेंडरी है, बट मुझे लगता है प्राइमरी है कि जो हमारी कंपनी है जो कि विदेशों में आज पहुंच पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ 3000 जो एग्जीबिटर्स हैं ये सब ऐसा कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि एक जगह पे आके इकट्ठा होके वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? तो ये उस लिहाजे से मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कदम है गवर्नमेंट का और सक्सेस ज़रूर मिलेगी हमें इसी में। मैं बस यही आशा करूँगा कि ये बहुत एक बड़ा एक इवेंट उभर के एज सामने आए
और ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जाए. और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड congratulations on being part of this huge event, in this mega event. So can you just tell me about your background? What is your background, like how you have involved in this business, in this company, how you have started, like your family, is this your family business, or how did you involved in all this? Yes, so hi, my name is Ayush Kundalia. My company's name is Unique Fur and Fabric Private Limited, and basically we are based in Surat, Gujarat, and we basically deal in all types of knitted fabric, warp and circular knitted fabric. And so I am the second generation who is carrying forward this business. My dad is the one who started the business. His name is Vikash Kundalia. And so here in this exhibition we are showing you a range of all type of our latest new innovation, new value addition things, and all type of warp and circular knitted fabrics. So starting over from here, so these all are circular knitted fabrics. Okay. These are basically used in activewear, sportswear. So like in this you can see this is a catonic dyed fabric. This is called discat. It is used for activewear t-shirts. Okay. This is known as Zurich. This is based for this is made for leggings and all. Okay. And moving ahead, this is our range in velvet series. This is all for 4-way lycra velvet. Okay. Like Okay. you can have a stretch in both the sides. Okay. And these all are used in apparel, garment, in fashion industry, majorly for women's. We are doing sequins, embroidery, pleating, crushing, and a lot of things in it. The GSM of this fabric is 250 and the width would be 60 inches. Okay. And it is basically morely known as Korean velvet. We have also started doing mesh, in which we have lycra based and the plain mesh as well. So these are on mesh. You can see digital prints. This is a 100 GSM mesh, majorly known as PowerNet, and it is also used in very known brands Zara and H&M, and they are doing very good in it, and we have also started doing it. So now this is our swimwear fabric range, in which you can we might see later in the video the swimming costume as well, built from this one. And this is all swimming. In this you have bright, dull, everything you can find it, all the GSM, all the percentage and everything. And lastly, moving forward, we have this in which we are pioneers, known as velvet, commonly known as Holland velvet. In this we are doing from 180 GSM to 300 GSM, and in all inches and in all value addition. So this is the whole range. Okay. So I can see you deal with the raw clothings, like okay. So I just wanted to know, just a curiosity, like how this ready-made sector of clothing is different from this like dealing with the fabrics. How different all these? So like every sector has its pros and cons. Basically we are dealing in fabrics, so we have to be keen on the quality, the quantity, the price. We have to match the pricing, because our would be the lowest pricing, then the value addition takes place, then the garmenting takes place, then the stitching, then branding, and then it comes to the in the retail. So it is very competitive market, but yeah, we are coping good and we are doing our best what we can do. So the fabrics are really very good, as I can see. I just want to know your perspective on this mega event. What do you think about this? How is this bringing a revolution to the world, or how this is making changes or bringing change into the India or on a global level? So in my perspective, this is a very good decision and initiative taken by the Indian government, and it is everything in under one roof. From yarns to garment, you can find everything in under one roof. You have the garmenters, you have yarn, you have dyeing units, dyeing people who are showing their product. You have spinning, you have water jet, air jet, woven fabric, knitted fabric. Then for men's, women's, ethnic wear, sports wear, active wear, everything is under one place. So it is a one-stop solution, and globally it is a very big step, because as in like we are doing Make in India, we are encouraging Make in India,
and it is all under one roof, and let's see, it goes very well and the response should be very nice. So we should come up with the second chapter the next year. Yeah, definitely. I hope the second chapter will be very on a high demand, I guess. So thank you so much for connecting us. हेलो सर, मैं दिवाकर। आपका नाम? मेरा नाम गुलाब चंद है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मंडी से। जी जी। ओके, सो गुलाब जी, ये जो आप सॉल्स लेके आए हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, और ये जो बुनाई का जो मशीन हम देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? ये काम वैसे तो मेरे पिताजी ने बहुत पहले 1976 में शुरू किया था। मैं 2000 से इस काम को कर रहा हूँ। हम लोग कुल्लू शॉल्स, स्टोल, मफलर बनाते हैं, वो वुल में, और सारा ये काम हैंडलूम पे होता है। इसमें ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है उनके कलर चेंज करके हम मार्केट में लाया है हमने इस बार यहाँ। तो अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छे हमें यहाँ से इंक्वायरीज आएगी। अच्छा, ये जो इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, भारत में पहली बार टेक्सटाइल का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि बड़ी कंपनियों से लेकर एक छोटे से छोटे गांव के कारीगर को यहाँ पे अपनी कला को दिखाने का मौका मिल रहा है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो बाज़ार का देखने को मिलेगा कि क्या लोग की डिमांड है और क्या लोग चाहते हैं, और हम क्या अपने डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। तो वो हम इससे सीख के कुछ बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा आपसे कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इस सेगमेंट में अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो आप होलसेल भी करते हैं कि सिर्फ फुटकर ही माल को बेचते हैं? नहीं, हम लोगों को एक्चुअल में हम एक संस्था के साथ काम करते हैं, दी हिमालयन वीवर्स करके हैं, जिसमें कि करीब 160 लोग हम ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर हमारा ऑर्डर तो रहते ही हैं, अगर कोई बड़ा क्वांटिटी में भी काम करना चाहे तो हम लोग करेंगे। जी, आप सपोर्ट करेंगे? डिज़ाइन के मामले में हम सपोर्ट करते हैं, फिर काम तो बुनकरों को सभी को मिलके ही करना होगा, तभी हम किसी ऑर्डर को कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप तो यहाँ पे आए हो, इतना खूबसूरत आपके सॉल्स हैं, सो थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंकल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे इसके बारे में। सो अंकल जी, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएं, और ये कैसे बनता है, और कब से आपने शुरू किया ये काम? ये काम हमारा ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी है, और मुझे इस काम करते हैं 55 साल हुए करीबन। हाँ, ज़्यादा ही हुआ करीबन। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। आनंद राम है, हम सालावास जोधपुर राजस्थान के हैं। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो इवेंट से आपको क्या फ़ायदा दिख रहा है, कि मतलब आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा? इस इवेंट से हमें ये फ़ायदा है कि जैसे यहाँ आते हैं तो हमारा एक एडवर्टाइजमेंट होता है, भाई इससे हमें कुछ कस्टमर मिलते हैं, और ये हमें यहाँ मिल जाता है। नहीं तो घर बैठे तो कोई बिना एडवर्टाइज कोई किसी को पता नहीं चलता। यहाँ आएगा तो ये ऐड होगा, देखेंगे लोग, तो इससे कस्टमर हमें मिलेंगे और हमारा माल बिकेगा, यहाँ फायदा आता है। तो आप बता रहे हो 1955 से आप कर रहे हैं, तो इसके पहले भी आपकी फैमिली करती थी कि? हमारे पिताजी, दादाजी, करीब 10 पीढ़ी तक तो हमें पता है कि 10 पीढ़ी तक हमारी यही काम करती आई है। और ये बोला सीखने के इंटरेस्टेड है, तो हमने मतलब चलो हमारे साथ बैठो, हम तो आप सिखाएंगे। तो इनको अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको जोधपुर आना पड़ेगा आपके पास? हाँ, सीखना तो जोधपुर आना पड़ेगा। सीखने वाले हों हाँ, तो यहाँ टीचर बन के आने। हाँ, जैसे कोई आप कोई ज़्यादा 5, 10, 15 है, तो हम यहाँ आके उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, देते हैं जाए भाई, चलो हमारे वहाँ है, जिस जोधपुर निफ्ट है, हमारे 2 IIT है, तो हम वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। जाके सिखाते हैं ना वहाँ पे। हाँ। 4 5 महीने। आपने बताया कि अंकल को काफ़ी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको कबीर पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, और गोल्ड मेडलिस्ट है इस दरी के अंदर। राजस्थान बुनकर रत्न मिला हुआ है, और स्टेट का भी बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य अंकल कि हम आपसे बात कर पाए, और बहुत खूबसूरत लग रहा है देख के, और सीखने का भी मन करता है कि ज़रूर कभी अगर राजस्थान में आया तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा मैं 100% आपसे। थैंक यू सो मच अंकल। के बारे में बात कर रहे थे, पंजादरी के बारे में, तो सर के ही कंपनी में बनती हैं, तो हम एक बार सर से इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसका बिज़नेस कैसे आप शुरू कर सकते हैं, ये बनता कैसे है।
तो सब मेरा नाम दिनेश बोबरिया है, जोधपुर से हूँ। आप देख रहे हो पंजाब दरी कैसे वीविंग करते हैं। ये हमारा पुराना खानदानी काम है, मतलब 150-200 साल हो गए दरी बनाते हुए। ऐसे अलग अलग टेक्निक, इसमें कॉटन का मटेरियल काम लेते हैं, वूल है, जूट है, कैमल हेयर है, सब नेचुरल यानी हम यूज़ करते हैं। इसमें हर एक कोई भी अलग अलग साइज़ के सब बनाते हैं। जूट आपने 2x3 से लगाकर 9x12 तक। ये मार्केट में ज़्यादातर अपने इसको फ्लोर कवरिंग के लिए यूज़ होता है और इंटरनेशनली डोमेस्टिक ये सब जगह चलता है ऐसे। तो इसके अप्रोच के लिए मतलब आप इसके अपने कुछ ऐसे कुशन भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, एपोस्ट्री के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इसका बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको कैसे मतलब शुरुआत करनी चाहिए या कैसे वो इन चीज़ों में एंट्री करे? अगर कोई नया शुरुआत करना चाहे तो वो बेसिकली कुछ हमारे स्टॉक, हमारे पास खूब वेयर हाउस में स्टॉक रहता है, तो कुछ थोड़े बहुत सैंपल लेके वो स्टार्ट कर सकते हैं उनका अपने। बट ये है कि उनको दिखाना पड़ेगा कैसे आप वीविंग करते हैं, वीडियो रख सकते हैं अपने पास में, क्योंकि जब तक आप वीविंग उसको पता नहीं चलेगा कैसे वीव होता है, तब तक वो पता नहीं उस जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हैंडमेड है या मशीन मेड, क्योंकि आजकल मशीन मेड मार्केट में ज़्यादा चलता है। तो आप अगर रेट बता दो डायरेक्टली ये अपने 3000 का है और वही मशीन में 300 रुपये मिल रहा है, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो चलाओ, उसमें कैसे वीविंग होता है पूरा प्रोसेस दिखाओ, तब आप आपके यहाँ से खरीद सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा आप अपने कहाँ से आपने ये बिज़नेस आप करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके क्या हैं, जैसे अगर किसी को डायरेक्टली आपसे माल मंगाना, क्योंकि देखिए क्या है कि जो आपने बताया वो मशीन का जो है वो तो सही है कि आपको हर जगह मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, बट ये हैंडमेड है, इतना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो और सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा टेक्सटाइल का जो इवेंट हो रहा है, इससे मतलब आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी तो हम क्या गवर्नमेंट के थ्रू, पापा नेशनल अवार्ड ही है, गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं, बट हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा एग्जीबिशन होगा। बट यहाँ आके देखा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतना अभी तक घूमे नहीं है, बढ़िया अपने लोग कांटेक्ट मिल रहे हैं ऐसे। और जैसे सुबह मोदी जी ने बताया, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से बाहर मार्केट ढूंढें, भारत में भी इतना बड़ा मार्केट है, तो उसमें भी आप अपने बना सकते हो। इसमें ये देखना यूज़ कहाँ होता है, तो बाकी अदर कंट्री में ऐसे कई हर एक कंट्री में दरी तो फ्लोर कवरिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें काम आ सकता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है और अच्छा मार्क अपने एग्जीबिशन अच्छा जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली, सो थैंक यू सो मच सर। आपका यहाँ पे आना, जो आप यहाँ पे आए हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, भारत सरकार करा रही है, सो इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप बस अपने बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ। Hi, hello, I am Ishant Ulshan. I am coming up from Varanasi, Banaras, the city of saris, temples and God. So, ये जो इवेंट है, मोदी जी and his vision, and not only Modi ji but central government also, they have this great vision. Whatever they think, they do it and plan it to do it in a big way. So they have come up with this Asia's, or you call it largest global textile fair in India, and this is one of its kind, I guess. That's why they have come up with convention centers like Bharat Mandapam and Yashobhumi. This is bigger than Canton Fair, I would say. So, and they are now focusing on all 5 F's, that is from farm to fiber. Fiber is like your yarns, then from fiber to fashion, fashion to factory, and then to foreign. So this is quite a great initiative. As of now, I'm a silk yarn merchant, pure silk yarn merchant. I deal into pure silk yarns. So I'm only focusing on one vertical, that is from fiber to factory, or you call it fabric. Now I am exploring, I am looking forward to explore all 5 other verticals. So let's see how it goes. कंट्री के ऊपर या जो यूथ है, मीन्स अगर हम देखें कि यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं वो मोदी जी, तो क्या मतलब लगता है आपको कि कितना आगे जाएगा ये टेक्सटाइल इवेंट से, हमें कितना बेनिफिट होगा या कंट्री को कितना बेनिफिट होगा? So post-farming, textile is the region which provides the biggest employment in our India after farming. So I guess this time it's not only we say local for vocal for local, but this time also we are providing a global platform to take it international. Yeah. So thank you so much, brother. Please tell me your name and I'm Tusita. I'm from Sri Lanka. Actually, I'm working in the one of garment manufacturing company in Sri Lanka called Vortex, and it's a wonderful exhibition actually that I visited all over the places in the exhibitions.
Even I came here before as well for some other exhibition, but this is, I think, I seen something different than previous. And now the global textile is changing everywhere. Now they are coming with the sustainable products and the new products, and they are changing the product to some other country, to the other country like India and South Asia. It's a really good product. Like country like Sri Lanka, the India is really important for us for a garment manufacturing. And if we are taking the fabric from here, it's really applicable for duty benefits as well, and it's really, really good advantage for Sri Lanka. The relationship with India and Sri Lanka. Textile, actually, we can't think about the textile without India. Yeah, we need India to success our business. We need other country as well, but India also really, really important plus point for us, because the lead time wise, if we are placed the order like today, within 30 to 45 days we can get the order to Sri Lanka. No, but the short lead time is really, really lower to India to Sri Lanka. That's a plus point for us. But honestly, speaking to one more things, actually, I'm working with some other country as well, but I feel there are something to improved in India. The one is the communications, and the communication meaning at like fast communications. That's really important, because that's also because we are working with the global. We are working with USA, Europe. The time is different. Therefore, we need a quick, fast communication to improve our business. Though, don't take me wrong, but that's my honest feedbacks. Yeah, thank you very much, thank you very much arranging this. It's a wonderful session for us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello, Divakar. निवेदन. Yeah. Mukul. So निवेदन, मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप यहाँ इवेंट पे आए, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो इससे आप बस कैसे देख रहे हैं कि इससे इंडिया को कैसे ग्रोथ मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ मिलेगा, और जो जैसे आपने बताया कि आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, इससे कितना सपोर्ट मिलेगा? एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो बहुत ही जैसे मैंने भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं उनसे कांटेक्ट किया कि भाई स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं न्यू जनरेशन को कि आप कोई भी टेक्सटाइल का बिज़नेस है हमारे इंडिया से आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए एक वन प्लेस हो गया है कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द वेंडर्स मिल जाएंगे, आपकी सोर्सिंग ईजी हो जाएगी, तो उससे एक वन स्टेशन पे ही सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उससे बहुत प्रमोशन होगा, काफ़ी प्रमोशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सो जैसे आपने बताया कि आप खुद स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या प्लानिंग की आपने? मैंने रिलायंस में गया था मैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अपैरल से चालू कर सकते हैं, सोर्सिंग से आपके मिनिमम MOQ होते हैं, और ये सारे मुझे डिस्क्रिप्शन दिए कि क्या एवरेज प्राइसिंग रहती है, क्या रिटेल प्राइसिंग रहती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग रहती है, और कैसे पूरा ये प्रोसेस होता है। तो वो सब मुझे जान के अब मैं उस पर वर्कआउट करूँगा कि मुझे कैसे फ्लो करना है, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही वो इन्फॉर्मेशन। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आप जो यूथ है, आपके जैसे जो लोग हैं कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, जो यहाँ नहीं आ पाए किसी कारणवश, वो देश के अलग अलग कोने में है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? तो आई थिंक दे मिस्ड अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बड़ा है ये एक्सपीरियंस और बहुत ही इमेंस है, लाइक इवन वन डे इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लोर ओवर हियर, एंड हियर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कनेक्ट विद मल्टीपल people and they have different experience in their life, like you can connect to a very senior, everybody is here available to talk about anything, and the environment is quite good, so you can ask everything about the situation and the market, so you'll better understand the market over here. They're like how many producers are there, how much is the competition in the market. So thank you so much. मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये जो टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है, इससे मीन्स फैशन इंडस्ट्री, जैसे आप फैशन इंडस्ट्री से आते हो और आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो क्या बेनिफिट होगा और इस चीज़? बहुत बेनिफिट होगा। तो ये तो ऐसा जो इन्होंने आयोजन किया यहाँ पे, ये इनको तकरीबन 10 साल पहले कर देना चाहिए था, बिकॉज जैसे कि हम हिंदुस्तान से आते हैं, हमारी इतनी संस्कृति है, हमारा उतना कल्चर है, हर कल्चर की एक विशेषताएँ हैं, हर विशेषता का एक टेक्सटाइल है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड ऑफ कोर्स
such kind of an event is also like giving budding designers a new platform, and of course, and attracting the international buyers and getting the more international funds to the country, because the like India is a land of colors, we all as known as. तो obviously इस तरह के events होते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं, और बहुत जितने भी एक्सपोर्ट हाउसेस हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, यहाँ पे आए हैं. अभी मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े देखे हैं आगे जाके, बहुत फैबुलस काम है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एंड बहुत सारे फॉरेन बायर्स को देखा है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेप गवर्नमेंट हैज़ टेकन. सो एक क्वेश्चन और मेरा कि जो न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपका बहुत लंबा एक जर्नी रहा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उनके लिए आपका क्या कहना चाहिए? वेल, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारे लिए बहुत टफ था, पर अब नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग वेरी इजी, और उसका सादा बहुत बड़ा उदाहरण ये जगह है. तो ऑब्वियसली अगर आप में हुनर है, यू हैव गॉट टैलेंट एंड यू हैव गॉट कुछ करने का जज्बा है, तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू. एंड everyone is very creative. They know what works well for them. So exhibitions like this give them a lot of exposure in terms of market, in terms of international markets. Obviously, so this kind of platform can always help them grow. Thank you so much, sir. Thank you. Hello, sir. दिवाकर. शोभित सर. हाँ. So sir, आप यहाँ इवेंट में आए. फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस का कैसा रहा है वो? इससे पहले के भी इवेंट मैंने देखे हुए हैं, जब अपना ये मंडपम नहीं बना था, तो ये पहले से बड़ा है क्योंकि हॉल वाइज डिवाइड था, तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे कई चीज़ें हैं, बड़ी कंपनीज़ भी हैं, छोटी भी हैं, तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. हो सकता है शायद मार्केटिंग में इसकी फ्लॉ रह गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आ पाई. उन लोगों को पता नहीं कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे हो रहा है. मुझे भी किसी के थ्रू पता चला. बढ़िया है. सो सर, एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है इंडिया में, जिसका अपने देश के इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस बिहार पे अगर देखें तो इस इवेंट के थ्रू कितना इस इवेंट से हमें मतलब हमारे देश को कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे मतलब इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, टांडा एक जगह है यूपी में, वहाँ पे बेसिकली जो धागा काटने की जो मशीनें होती है, बहुत छोटे स्तर पे अनऑर्गेनाइज वे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कह सकते हैं, आपका यार्न इंडस्ट्री वर्क करती है पूरा आपका. तो वहाँ पे क्या है, अभी वहाँ तक ऐसी चीज़ें नहीं पहुँची हैं भारत में अभी भी. वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर उन लोगों तक हम पहुँचाते हैं कि हमारे पास आज इंडिजिनस इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट आ चुका है, मशीनरी से रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ यार्न से रिलेटेड, कॉटन में, वैरायटी ऑफ कॉटन्स में, तो ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है उन छोटे कुम्हारों के लिए जो बना लेते हैं, आप कह सकते हैं धागा काटने वाले जो भी लोग हैं मशीन के थ्रू. बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि अगर उन तक ये चीज़ हम पहुंचा पाएँ कि सर आपके पास मार्केट भी है, आपके पास मशीनरी भी है, और आपके पास लोग भी हैं जो उसको मार्केट भी कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप जर्मनी की भी कंपनी आई हुई है, आपने देखा, और मेरे हिसाब से US से भी हैं, UK से भी हैं, और जापान की इंडस्ट्रीज़ ने अपने कई स्टॉल्स लगाए हुए हैं. तो आपको एक्सपोजर तो काफ़ी बड़ा मिलता है, पर उन लोगों को आगे यहाँ तक लाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि मे बी नॉलेज, दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, उनके लिए एक बैकड्रॉप हो सकता है, वो यहाँ पे मीट आउट करे. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ है यहाँ पे समझने के लिए और सीखने के लिए उनके. सो सर, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि आप CA हैं, सो एक छोटा सा क्वेश्चन कि जो नए कमर्स है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, इंडिया ग्रोइंग मार्केट्स है बहुत बड़ी, 144 करोड़ की जनसंख्या है हमारे पास, यानी कि अब हर व्यक्ति कपड़ा पहनेगा हमारे देश में. हमारे देश में हर एक चीज़, बहुत कुछ है, कपड़े से रिलेटेड बहुत कुछ. ऐसा नहीं कि खाली कपड़े में होता है, जूट बैग है, पैकिंग मटेरियल्स है, यार्न इंडस्ट्री का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता है, बेडशीट से लेके कॉटन की हर एक चीज़. तो स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप आप खोलो आप इस वक्त भारत में, उसको सही दिशा के लिए आपको सिंपल है, मार्केटिंग की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है. स्टार्टअप ज़रूर खुलना चाहिए भारत में. फ़ायदा क्या होगा, आप अगर लोएस्ट कॉस्ट, यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड वेंडर्स मिल जाएंगे जो आपको लोएस्ट टू लोएस्ट कॉस्ट पे फैब्रिक्स अवेलेबल करा सकते हैं. आप अपना डाल सकते हो स्टार्टअप डालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप
किस सेक्टर में जाके उस स्टार्टअप को चला रहे हो। मैंने अपना 4-6 नाम जैसे लिए इंडस्ट्रीज़ के, हेल्थ केयर है आपकी, उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल्स है, बाकी वेयरिंग इंडस्ट्री तो है ही अपनी, वेयरिंग अपैरल्स की, तो वो है। तो आप कहीं भी अपना डालो स्टार्टअप, छोटे से स्तर से शुरू करना चाहो, स्टार्टअप के लिए बहुत बढ़िया है फील्ड मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि पर एक्सपोजर की ज़रूरत है। आपको उन छोटे लोगों से कनेक्ट होना होगा, उनके प्रोडक्ट को समझना होगा, क्वालिटी को समझना होगा। स्टार्टअप बहुत अच्छा है भारत में, उसके लिए आपको उनके साथ ट्यूनिंग बनानी है, कम्युनिकेशन करना है, दैट्स इट। So thank you so much sir, आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया, so thank you so much sir. Please share your experience. Yeah, so basically I'm a manufacturer, so what we used to do actually, I supply to India. I'm one of the largest suppliers from Sri Lanka to India, but all our raw materials came from China. So this is a good opportunity for us to come and see whether we can purchase the raw material from China, from India, and to return the goods back to to India. So you save your money. Otherwise, the money what you send us, it's part of it goes to somewhere else. It's very encouraging. It's very good to have these kind of events. I believe for outside suppliers, and India is a very big market today, and it's growing. These kind of events will definitely encourage outside people to see India in a different way, and you guys also to improve your industries like textile industry, etc. So I think it's a good opportunity. It's amazing. I like it's been organized very well, quite good. I'm very happy about the whole event. Thank you so much sir. Thank you.